जो भी रीडर पढ़ता है वो उस किताब को पढ़ के अपनी दुनिया बनाता है। क्योंकि किताब में तो एक रेफरेंस है, जैसे प्रतीक बोला था भाई एक गांव है, एक वहां पे कुआं है और वहां से पगडंडी जाती है, सूरज ढल रहा है। अब मैंने जैसे वो गांव देखा होगा, अब कहीं भी देखा हो, तो मैं तो अपना रेफरेंस वहां से निकालूंगा। प्रतीक ने, आपने जो देखा होगा, वो सबके अपने रेफरेंसेस होते हैं और फिर किताब की कहानी आपको अच्छी लगती है। इवेंचुअली जब उस पर फिल्म बनती है तो आपको लगता है यार मैंने तो ऐसा विजुअलाइज नहीं किया था, पिक्चर तो कुछ और है। और मुझे ये भी पता है कि ये कैरेक्टर करते वक्त, क्योंकि इतना ये इसको एक तरह से इतनी डिग्निटी और इतने कंट्रोल के साथ प्ले करना पड़ता है कि जब रिव्यूज आएंगे तो लोग बोलेंगे यार इसमें तो आपने एक्टिंग ही नहीं की। और लर्निंग जहां तक है तो मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग ये रही कि ये नॉर्दर्न बेल्ट का जो कैरेक्टर है सूरज यादव, तो मैंने नॉर्दर्न बेल्ट के किरदार इतने कभी परफॉर्म नहीं किए हैं। तो वो वहाँ की बोली, वहाँ का जो एक बॉडी लैंग्वेज है, वहाँ का जो एक मिजाज है, वो सारी चीजों को लेकर आना और लोगों तक पहुंचाना। Hello everyone, welcome to peepingmoon.com. I am Rashita Sahani, and today joining me for a super interesting conversation are Richa Chadha, Prateek Gandhi and Tigmanshu Dhulia for their upcoming show, The Great Indian Murder. Hi you guys, how have you been? Good, thank you. I must say it's kind of a show. I've only seen the trailer, but it makes you, want to know more. कि क्या होगा आगे, and you want to instantly start watching the episodes, and very few thrillers can actually manage to do that with only its trailer. So you tell me, how has the entire process and journey been for you being associated with the Great Indian Murder? Richa, we can start with you. I mean, anything that is a good text, good book, if it gets adapted very well for the screen, especially for this format, I think it works very, very well, because if the book is meaty, if the book is a page turner, it lends itself to the screenplay of a series very well. Like they can be very exact and very engaging, like cliffhangers at the end of each episode, and you can keep working through like 7, 8, 9, 10 of them. And this is exactly what has happened. Only Prateek and I are here, but we have a stellar cast of such amazing performances. There's Paoli, Himanshi, Shashank, Ashutosh sir, Raghubir Yadav, who's a legend in himself. There are lots and lots of amazing actors. Because Tishu sir himself is from NSD. बहुत अच्छे ड्रामा स्कूल के एक्टर्स, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेस आपको दिखेंगे इस शो में, which I am very proud of actually. I'm very happy. It's a great ensemble show. And I really hope that people like it and enjoy it. And I think that they will. That is my instinct. Well, Prateek, you answer and then we'll go to sir. So the show, it's a big show in terms of the scale, in terms of the cast, in terms of the way it has traveled geographically across India. This is shot in 9 cities. So I guess itna bada show hai, and the scale is so big that it has a place for a lot of good performances, and there are brilliant actors that we have. Whatever that we have seen a little bit in the trailer, you will see them shining in each and every episode. So I guess Tishu sir will be able to tell you more in detail about it. But such a good book getting translated in a series, and you get to be a part of it, is something that you feel lucky about. Definitely. And Tigmanshu sir, my question is that only to you, that जब आप एक book से of course एक adaptation बनाते हैं, it's एक web show उसका बनाते हैं एक series format में, क्या challenges face करने पड़ते हैं? Because of course आपको एक cinematic experience भी दिखाना होता है audience को. मुझे लगता है जो challenge इसीलिए होता है ना कि कई लोगों ने किताबें पढ़ी होती हैं और फिर उस पर जो फिल्म बनती है तो कई लोग कहते हैं यार फिल्म बहुत बेकार थी. आई थिंक गॉडफादर एक ऐसी पिक्चर है जो कि लोग कहते हैं कि यार शायद किताब से भी बेहतर है, लेकिन कई किताबें हैं
अब अंग्रेजी किताबों का रेफरेंस देना पड़ेगा बिकॉज हमारे यहाँ तो किताबों में कुछ काम हुआ नहीं, स्पेशली हिंदी किताबों को तो लोग किताबें मानते ही नहीं है। खैर, तो जैसे किताब थी ब्रिजेस ऑफ मैडिसन काउंटी, वो बहुत पढ़ी गई, बहुत ही बेस्ट सेलर रही। क्लिंट ईस्टवुड ने उस पर पिक्चर बनाई, मेरिल स्ट्रीप और लेकिन ऑनेस्टली मुझे भी फिल्म उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी अच्छी किताब थी। किताब के साथ ये होता है कि राइटर तो लिख देता है किताब, यही बात प्रतीक ने भी उसने पिछले इंटरव्यू में सेम बात कही थी, बहुत सटीक बात है वो, कि जो भी रीडर पढ़ता है वो उस किताब को पढ़ के अपनी दुनिया बनाता है। क्योंकि किताब में तो एक रेफरेंस है, जैसे प्रतीक बोला था भाई एक गांव है, एक वहां पे कुआं है और वहां से पगडंडी जाती है, सूरज ढल रहा है। अब मैंने जैसे वो गांव देखा होगा, अब कहीं भी देखा हो, तो मैं तो अपना रेफरेंस वहां से निकालूंगा। प्रतीक ने, आपने जो देखा होगा, वो सबके अपने रेफरेंसेस होते हैं और फिर किताब की कहानी आपको अच्छी लगती है। इवेंचुअली जब उस पर फिल्म बनती है तो आपको लगता है यार मैंने तो ऐसा विजुअलाइज नहीं किया था, पिक्चर तो कुछ और है। एग्जैक्टली, क्योंकि पिक्चर कोई और तीसरा आदमी बना रहा है, उसने अपना गांव देखा है, वो गांव आपको पसंद नहीं आ रहा क्योंकि आपने वैसा गांव विजुअलाइज किया नहीं था किताब पढ़ते वक्त। तो सबसे बड़ा आई थिंक चैलेंज वही है कि ऑलरेडी लोगों की दिमाग में जो एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस है, उस रेफरेंस को कैसे क्यूमुलेटिव और एक ही कॉमन रेफरेंस बनाया जाए। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज, स्पेशली अगर किताब पॉपुलर है और बहुत ज्यादा पढ़ी गई है, सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ की आती है, आपको कॉमन रेफरेंस बनाना पड़ेगा सबके लिए। तो अगर ये लेकिन ये तो सबके कई ज्यादातर लोग ने हिंदुस्तान में, कई लोगों ने नहीं भी पढ़ी होगी किताब, है ना, तो उनके लिए एक फ्रेश चीज होगी, और जिन्होंने पढ़ी होगी उनके लिए देखेंगे वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि जब आप नई कहानी सोचते हैं तो उस पर बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, लेकिन नॉवल जो होती है आपको मिल जाती है, और कहते हैं यार ये कहानी तो मिल ही जाती है, उसके बाद आपको उस कहानी में और छोटे छोटे प्लॉट पॉइंट्स और इंटरेस्टिंग चीजें पिरोनी पड़ती हैं उसको एक अच्छा इंटरेस्टिंग यूनिवर्सल एडेप्टेशन बनाने के लिए। बट आसान भी बहुत है किताब पे काम करना, आपको शुरुआत मिल जाती है, स्टार्ट मिल जाता है कहानी लिखने का, बिल्कुल, तो वो बहुत सहूलियत हो जाती है। बिल्कुल अग्रीड। And Pratik, ये question आपके लिए है. I think we discussed this at the trailer launch also this afternoon, that you have played a character which got wide appreciation to you, was in Scam, and there you play someone who doesn't follow the law very often, and here you are someone who who's behind it and who's doing it all. So how much did you have to learn or unlearn for your character in this one? So learn unlearn की जहाँ तक बात है, ऐसा था कि this character also has a human journey. He has his own world where he is coming from, with his own complexities and complexes also. So the character of Suraj Yadav that way is absolutely different than whatever I've done so far. Be it theater, be it films, be it OTT platform, wherever. This is absolutely a different character than whatever I've done. So अनलर्न तो ये था कि जितना भी आगे किया था वो सब कहीं छोड़ देना है, मुझे एकदम नए से पूरा एक नया किरदार बनाना था। और लर्निंग जहां तक है, तो मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग ये रही कि ये नॉर्दर्न बेल्ट का जो कैरेक्टर है सूरज यादव, तो मैंने नॉर्दर्न बेल्ट के किरदार इतने कभी परफॉर्म नहीं किए हैं। तो वो वहाँ की बोली, वहाँ का जो एक बॉडी लैंग्वेज है, वहाँ का जो एक मिजाज है, वो सारी चीजों को लेकर आना और लोगों तक पहुंचाना, तो वो एक लर्निंग रही मेरे लिए। और बिकॉज क्योंकि तिशु सर भी इलाहाबाद से हैं, और जैसे उन्होंने नॉर्दर्न बेल्ट को वो बहुत बड़े अच्छे से समझते भी हैं, तो वहां से काफी कुछ मुझे हेल्प भी मिली, एंड दैट्स हाउ आई बीन एबल टू परफॉर्म दिस। Okay, fantastic. Richa, what about you? Even you play layered character in this one. जितना भी ट्रेलर से दिखा और जितना प्रेस नोट से पता चला, इतना ही अभी तक पता लगा है. So what was your approach like to play this one? See, this character, like if you were there at the trailer launch, you'll know, was not in the original novel. It's not a part of the novel. These two characters, Suraj and Sudha, have been written by Tishu sir, in terms of the adaptation and all. So for me, really his word was word of God. उन्होंने मुझे जो brief दिया, मैं उसी में मैंने कोशिश की कि उसी में रहूं, और उसमें बहुत सिंपल था कि यू हैव टू बी डिग्निफाइड। आप एक कोशिश आपकी ये रहती है, नियत आपकी ये रहती है कि हर चीज को ईमानदारी से किया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट हैं, आपके पास्ट में कुछ नहीं है,
बट जहां तक हो सका मैंने उसी चीज को फॉलो किया। और मुझे इसमें इंटरेस्टिंग ये लगता है, अक्सर फिल्मों में हम देखते हैं अगर किसी के घर में कोई ट्रेजेडी है या कुछ कुछ बुरा हो चुका है उनके साथ, तो वो पूरे कहानी में उनका मुंह लटका रहता है, विच इज नॉट द केस। कई बार हम किसी की मैयत पे होते हैं, कुछ अजीब सी चीज हो जाती है और किसी की हंसी छूट जाती है, और इट्स नॉर्मल, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, तो एक इमोशन को कैरी करके कोई भी पूरी जिंदगी नहीं चलता। और कैरेक्टर थोड़ा सा शेडेड है, थोड़ा सा नुआंस्ड है, इसमें मुझे बहुत मजा आया। मुझे लगता है आगे जाके और भी मजा आएगा। और मुझे ये भी पता है कि ये कैरेक्टर करते वक्त, क्योंकि इतना ये इसको एक तरह से इतनी डिग्निटी और इतने कंट्रोल के साथ प्ले करना पड़ता है कि जब रिव्यूज आएंगे तो लोग बोलेंगे यार इसमें तो आपने एक्टिंग ही नहीं की। तो वो होता है, अक्सर लोग पंच एक्सपेक्ट करते हैं, रेज एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये जो चीजें आई नो इट विल हैपन, बट it's so much fun to play a straight up character like this, because I don't get to do that also very often. तो मुझे बहुत मजा आया ये किरदार प्ले करने में। इसकी दुनिया अलग, इसकी बातचीत अलग, इसकी चाल अलग, इसके सबऑर्डिनेट अलग, सबऑर्डिनेट्स के साथ रिश्ता अलग, ड्राइवर के साथ रिश्ता अलग, घर में जो पियोन है उसके साथ अलग, पति के साथ अलग, बॉस के साथ अलग, और अपने जमीर के साथ एक बहुत अलग रिश्ता, जिसमें आपको पता है एट द एंड ऑफ द डे आप अपने आप को ही आईने में देखने वाले हैं। तो वो जो चीज है वो मुझे बहुत एक्साइट करती है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ अपनी लाइफ भी इसी तरह से जीऊं। ओके, ग्रेट। एंड तिग्मांशु सर, एज अ फिल्म मेकर, जब आप एक थ्रिलर डायरेक्ट करते हैं तो क्या कठिनाइयां आती हैं? बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि जब थ्रिलर्स बनती हैं तो एक ऑडियंस को टू मेक इट एन एज ऑफ द सीट वॉच थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। काफी सारी थ्रिलर्स तो ऐसी होती है कि लगता ही नहीं है कि एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मिला है। काफी बार ऐसा हुआ है। सो टू मेक इट अ सक्सेसफुल थ्रिलर, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू फॉलो पर्सनली? पहली बात क्या है कि ये मर्डर मिस्ट्री है, ये थ्रिलर नहीं। मतलब थ्रिलर उसमें उसका ऑफ कोर्स, या मर्डर मिस्ट्री एंड थ्रिलर, या उसका एक और स्पाइस है साथ में, लेकिन है मर्डर मिस्ट्री। देखिए, थ्रिलर बनाना बहुत आसान भी है और कुछ मुश्किल भी है, बिकॉज थ्रिलर में क्या है कि आपके पास सारा मसाला आपकी स्क्रिप्ट तगड़ी होनी चाहिए, प्लॉट पॉइंट करेक्ट होना चाहिए और इलॉजिकल कभी नहीं होनी चाहिए। थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री में जब इलॉजिकल हो तो ऑडियंस पिक्चर देखने के बाद या शो देखने के बाद रिवाइंड जरूर करती है, अच्छा ऐसा, अच्छा वहां पे कहीं कुछ गलती की हो तो अरे ये तो बेकार है, ऐसे थोड़ी होता है, वहां पे तो ऐसे दिखाया, यहाँ पे तो ये निकल गया। तो थ्रिलर में लॉजिक आपको बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, सबसे पहली बात, वो इलॉजिक नहीं होनी चाहिए। यही सबसे बड़ा रोड़ा है। और अदरवाइज तो स्क्रिप्ट में आपकी चीजें हैं, आपको बस उसको एग्जीक्यूट करना है कायदे से और थ्रिलर हो जाती है। लेकिन हमारे सामने कुछ ऐसी मर्डर मिस्ट्रीज, कुछ ऐसे थ्रिलर ग्रेट मास्टर्स ने इतना बढ़िया काम किया है बाहर की फिल्मों में भी और हमारे हिंदुस्तान में। गुरुदत्त ने बहुत अच्छी बनाई है, राज खोसला साहब ने बहुत अच्छी बनाई, विजय आनंद तो मास्टर, तीसरी मंजिल आप देख लीजिए पिक्चर, क्या थ्रिलर पिक्चर थी। तो आप चाहते ना कुछ, आप भी बेंचमार्क सेट करने की कोशिश करिए, काम है तो कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं, अब तो निकाला नहीं जाएगा जब तक जब रिटायर नहीं होंगे, अब तो आपको हर वक्त काम करना ही पड़ेगा, ठीक ठाक ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो नई जमात तैयार है खड़ी, आपको कभी धकेल के बाहर कर देगी। तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो मैं तो बहुत ज्यादा सतर्क हो गया हूँ, बहुत अलर्ट हो गया हूँ कि अभी मुझे कोई हिलाए विलाए ना कुछ साल होता। तो इस थ्रिलर में ये है कि ये किताब में, वो मटेरियल जो किताब में ही था, कि ये थ्रिलर से थोड़ा ऊपर उड़ जाती है किताब। ये हिंदुस्तान के सोसाइटी पे कमेंट करती है, इतने सारे कैरेक्टर हैं, सब अपने अपने उस सामाजिक ढांचे में पूरी तरह से बहुत कायदे से पिरोए हुए हैं। तो मुझको सिर्फ थ्रिलर कहानी और एक इंटरेस्टिंग थ्रिलर रोचक कहानी सुनाना नहीं था, मुझे हिंदुस्तान के समाज को भी दिखाना था इसमें। जिसमें एक ट्राइबल लड़का आ रहा है, फिल्म की हीरोइन है, ग्लैमरस हीरोइन है, एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है जो रघु भाई प्ले कर रहे हैं, एक अभी कैरेक्टर आता है जो अमेरिका से आता है, लैरी पेज, वो है, एक झुग्गी झोपड़ी में पॉकेट मार किस्म का एक लड़का है, साथ में ये दोनों कैरेक्टर हैं जो प्रतीक और ऋचा है।
दोनों का अपना एक सोसाइटी में एक खास ढांचे में पिरोए हुए लोग हैं, तो उस सामाजिक परिवेश में रहकर इन चीजों पे काम करना, इन कैरेक्टर पे काम करना, वो मुझे इसमें ज्यादा मजा आया। और ये कि पूरे हिंदुस्तान में घूमती है, चेन्नई भी जाती है, कलकत्ता भी जाती है, अंडमान निकोबार भी जाती है, छत्तीसगढ़ भी जाती है, ये बहुत जगह घूम रही है पिक्चर, तो उसका एक और मजा है। तो लोकेशन वाइज, लुक वाइज, और ऐसे पेंडेमिक टाइम पे इतनी बड़ी यूनिट को करके इतना बड़ा काम, बहुत ही फैला हुआ काम था। ये प्रोड्यूसर्स को, प्रीति सिन्हा को और अजय देवगन साहब को इस बात की दाद देनी पड़ेगी जरूर कि उन्होंने करवा लिया किस तरह। It's not easy. बिल्कुल, it's not easy. Definitely. Okay, got it. And ये अब क्वेश्चन प्रतीक एंड ऋचा से है, बिकॉज तिग्मांशु सर एक्टर भी हैं, तो यू नो ऑन सेट कैसा था? वाज ही एन एक्टर्स डायरेक्टर, या यू नो वो अपने भी आपको एडवाइस या टिप्स दे रहे थे जब भी कोई भी सीन हो रहा था? मजेदार था, बहुत मजेदार था एक्सपीरियंस हमारे लिए तो, क्योंकि ये खुद एक्टर भी है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एक्टर खुद कुछ करते हैं, तो टिशू सर तुरंत समझ भी लेते हैं, टिशू सर तुरंत उस चीज को रेसिप्रोकेट भी करते हैं। अगर कोई चीज ऐसी लगती है कि हाँ अच्छा है, then he would let you explore also, and at the same time, because he's an actor, there were a lot of things that sometimes you miss, you know, when you are performing. Correct. So he would point it out, and then we would correct it also. So that way, yeah, it's a very interesting journey to work with. Okay, fantastic. Richa? I really, मतलब it's the most cliche thing to say कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, but it's true. And I didn't just get an insight into how I could make my work better as an actor, but also as a writer. You know, sometimes we would be going to मतलब एक scene है ऐसा कि हम लोग शायद उस रूम में घुस रहे हैं जहाँ मैं और मेरा एक सबऑर्डिनेट, उनका नाम मनजोत सिंह है शो में, और रियल नाम है गुनीत। सो जब हम एक जगह घूम रहे, इस कमरे में घुसने वाले जहाँ बहुत सारी एविडेंस पड़ी है, तो बोलते कि आप अंदर जा रहे हो, तो वहां पे थोड़ा सा एक डेड टाइम था, थोड़ा सा साइलेंट टाइम था जब कैमरा हमें फॉलो कर रहा है। सो ही टोल्ड मी कुछ इम्प्रोवाइज कर लो आप दोनों पंजाबी में, कि बिल्कुल अनरिलेटेड कुछ। तो हमने कुछ ऐसे बात की कि हाँ हम बचपन में ये वाले गाने गाँव में सुनते थे, उसके बाद जाके वर्ल्ड चेंजेस, बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस, यू नो। समटाइम्स प्लॉट पॉइंट 1, प्लॉट पॉइंट 2 और क्लिफ हैंगर के बीच में जो एक ह्यूमन चीज है ना, जो एक ह्यूमन मसाला है, वो मिस हो जाता है। तो वो मुझे बहुत देखने सीखने को मिला इनके साथ, एंड फॉर दैट एक्सपीरियंस आई एम वेरी ग्रेटफुल। और मैं इतना जरूर कहूंगी कि बिकॉज ही इज एन एक्टर ऑल्सो, he wears many hats, मुझे ऑलमोस्ट नर्वसनेस रहती थी हर शॉट से पहले। तो मुझे लगता था कि मैं करूं इम्प्रोवाइज के जाने दूं। अब मुझे लगता है कि अब क्योंकि नाउ वी वर्क टुगेदर वंस, यू नो, व्हेनेवर वी वर्क अगेन फॉर सीजन 2 व्हाटएवर इट इज, बहुत एक अलग, बहुत फील एक फ्रीडम वाली आएगी, क्योंकि आई थिंक एक रैपो बिल्डिंग क्रिएटिव हो चुकी है। तो आई रियली हैड फन। Great, that's absolutely fantastic. Okay, thank you so much, Pratik, Richa, and Tigmanshu, sir. It was lovely chatting with you three, and all the very best for the show. Thank you. Thank you. Thank you. Most welcome. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah.